Today, we are going to talk about a current affairs thing. What is the essence of this is we will do topics which are in news, but their details are not so visible. And usually their concepts are not understood. So आज का मुद्दा ये है कि एक टॉपिक को उठा के हम लोग कवर करेंगे एज एन एग्जाम्पल ऑफ द कमिंग डेज. एवरी सैटरडे ये कोर्स रहेगा सर. उत्तीर्ण इसका नाम किसी ने चूज करा है. आई वुड सिंपली से करंट अफेयर्स एंड दिस विल गो ऑन एवरी सैटरडे. एंड प्राइमरली जो आम एस्पिरेंट नहीं कवर कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन इट अगेन एंड अगेन, साइंस डेली हो गया, डाउन टू अर्थ हो गया, all those PRS legislature things. This has been made possible this year because we have found out that majority of the questions do not appear from standard sources, especially for UPSC. हर कोई स्टैंडर्ड बुकलेट पढ़ के आता है जो भी प्रीलिम्स के लिए सीरियस है, बट क्वेश्चन उसके नहीं निकलते. तभी 10 लाख में से 7-8 हजार लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं सर. सो दैट इज वाई दिस कोर्स हैज बीन मेड to cover every important affair in greatest of details and cover those gray areas of current affairs which we usually tend to ignore and paper में जाके पता लगता है अच्छा ऐसा भी कुछ था. So let's start that. If any questions are there, please let me know. No questions? All right. So I hope the screen is visible and I'm audible to everybody. Yes, sir. Thank you. Thanks for the confirmation. So उत्तीर्ण कोर्स सर, इसके लिए हमने स्पेशल एक नेम रखा है बिकॉज करंट अफेयर स्पेशल है. और प्रीलिम मेंस इंटरव्यू कैसे, अभी आपके पास आगे बताता हूँ कैसे. प्रीलिम्स एंड मेंस एंड इंटरव्यू ऑल, बिकॉज द टॉपिक फॉर टुडे इज सेडिशन सर. And before doing anything else on this, I'm coming back to you guys and I'll be giving you an interview based question and you all have to answer. जिसने भागना अभी भाग जाओ, मेरे सामने सामने मत भागना. So everybody one on one I'll be asking you, please cameras on करके जवाब देना. Those first let's start with Garima ji. Are you able to listen? Please camera on कर लो. So, if in an interview you're asked that sedition law does not suit democracy, so in your opinion, should it be repealed? What would you say, Garima ji? So in my opinion, sedition law may need revision, but repealing a law instantly will not be possible. Also, according to the Law Commission of India, repealing sedition law would not be possible in the present scenario due to because it can cause more harm into society than it can bring peace. That's my view. Right. Thank you. Sagar ji? जी sir. What do you think about this same question, that should it be repealed? No sir, it should not be repealed completely, but I believe that it needs modification because it's a very old and British era law, so it needs modification. It should not be completely repealed because of the safety of the nation, because it is required for the safety of the nation. So, Sir, although I'm not today, I'm not referring to individual opinions. But one thing, there's an IRS officer. He's just an IRS because he says he's just an IRS. He wants to be an IRS because he started his answer with no. That's the same mistake you did. Never start your interview with a no. That's a very bad precedent, right? Please. Baki everybody would get their opinions. Don't worry. Aneet ji, you're a lawyer. रुक जाओ, आपसे बाद में आता हूँ. विशाल सर, संधू साहब, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा. सर रिपीट करिए सर. That sedition law does not suit democracy. What, in your opinion, should it be repealed or not? सर
से मतलब कि रिपील्ड कर देना चाहिए कुछ लिमिट तक। अच्छा जी। हाँ जी, मतलब कि सर जे नेशन ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। चेक होने चाहिए। राइट। नवकीरत जी, व्हाट डू यू फील अबाउट द सेम क्वेश्चन? संधू साहब म्यूट कर लो प्लीज, नहीं डिस्टर्बेंस आती रहेगी। Yes, sir. It should not be repealed. Like we have the rarest of rare in death penalty. We can think that about here. Right. Sedition should be used in extreme cases only, not in regular cases. Right. नवजोत सिंह जी। सर अनम्यूट करके बोलेंगे तो मुझे सुनेगा। सर इसको मैं सर क्वेश्चन मेरे को ना ध्यान से सुना ही नहीं दिया था, बीच में थोड़ा सिग्नल कट गया था। Sedition law does not suit a democracy. Should it be repealed in your opinion? Sir, according to section 124A, sedition has been given a proper definition. It was introduced in 1870 and it was primarily used as a tool by the British to clamp down on the voices of Indian descent. But within its words, it says that whosoever attempts to excite, and there's a proper word called disaffection against the government. Now, the disaffection includes that feeling of enmity and hatred. So, according to the definition, it in no manner whatsoever is in contravention to Article 21, right to life, and the right to free speech. So, I don't feel that it should be in any manner should be banned or it should be exhumed. It should rather be used judiciously, as has been held by the Honorable Supreme Court. Great. Thank you. Aneet ji. Sir, it's pertinent that we take a balanced view here. Sedition, its historical reasoning was to help British curb the suppression, the rebellion. But now, given the circumstances, as recommended by Law Commission, the definition given under Section 124A can certainly be made more clear by defining certain terms like dishonesty, disloyalty, and incitement. A complete repeal of the provision will not serve the ends of justice, and therefore efforts should be made to remove the vaguity around it and take it towards more clearer interpretations and ensure that it is not leniently used, and various efforts can be taken to ensure the same at executive level, and various implementing agencies can also be trained. Right. Thank you. So the fact of the matter is, I'm not grilling you single-handedly or individually right now. So we'll be using this pattern that you'll have some suggestions. Like, for example, majority of us used this term "in my opinion" as my opinion. My opinion in an interview or mains does not mean your opinion. It is informed opinion. It could be simply said the Supreme Court has recently suspended the law for re-examination. अभी हम इसका कंटेंट भी करेंगे, बाकियों से इसलिए नहीं पूछ रहा बिकॉज आपने कैमराज ऑफ करे हुए हैं। जो कैमरा ऑन करेगा उसी से पूछूंगा, काली स्क्रीन से सवाल नहीं पूछता मैं, है ना। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन and the prime minister office and the government of India has on affidavit assured that we'll re-examine the law. So it is in consonance of all the governing bodies that the law needs re-examination, not repeal. Hence, we must support that view. तो मैंने अपना आंसर तो बोला ही नहीं ना, मैंने उसको बहुत ही दूसरे के ऊपर डाल दिया। और सुप्रीम कोर्ट को मना करना या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मना करना वो इंटरव्यू लेने वाले की भी बस में नहीं है। He is looking for, are you informed? They're not looking for your opinion. They're looking for your humility. They're looking for your knowledge. They're looking for your bureaucratic attitude. कि मैं क्यों बोल लूँ सेडिशन लॉ, वैसी पिक्चर बैन होएगी कि नहीं, मैं क्यों बोल लूँ होएगी नहीं होएगी, who am I?
You just say we'll just examine and follow the censor board. So this is what we are going to do for every topic where there is an interview question possible. And now we'll come to the contents. फिर we'll look at the prelims based question and then we'll look at the mains based question. एंड जो कोर्स में ऑलरेडी हैं वो आंसर लिख के भी मुझे सबमिट करेंगे, वो संडे के आंसरों में कंसिडर करके उसे इवैल्यूएट भी करा जाएगा, राइट? बिकॉज कंटेंट भी आ गया, आपने बस आंसर का स्ट्रक्चर फ्रेम करना है। एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम्स हो तो मेरे को बता देना, नहीं तो आई विल कम बैक टू द कंटेंट। सर जैसे Aneet used law commission. Right. Law Commission's report on sedition. It isn't recent. It came around 2 or 3 years ago, right around the time when UCC was being discussed. Right around the time it gave a statement. Right. But just recently, Supreme Court, I think this month itself, they suspended it. Now, in an interview, she might have used the words, in my opinion. I did not hear her exclusively properly, but she gave a technical answer to it. Right. So, will it reduce her marks that she did No, not no, no. mention Because- the Honorable Supreme Court in any manner? She being a lawyer can answer technically, although it's not always advisable. Know your board. If there's a lawyer sitting and he's asking you the question, you're supposed to answer it technically. But if you would refer to Supreme Court, that's always better, right? Yes, sir. And sir, in mine, I simply went after the definition because I remember its contents that it had disaffection as a matter of content, and within that disaffection, it clearly states that disaffection against the state machinery in any manner is not exclusively that the working can be criticized, but not the machinery itself. It was would have held been as- actually you started with the wrong note that you started to define it. My question Yes, was, sir. does it need repeal? So you could have said before quoting the definition that it has been vaguely worded. So I was actually of the mindset that it's my mistake, sir, because I was giving the answer as a GS answer. No, it's not a GS answer. It's an interview question. So you have to be very crisp and apt. नहीं तो वो boring हो जाता है थोड़ा सा. सामने वाले को पता है क्या डेफिनेशन है तभी तो मतलब अगर अनीत का जैसे डेफिनेशन थी इन माय ओपिनियन उसमें से निकाल दे तो इट वुड हैव ग्रैब्ड द प्रॉपर मार्क्स. गुड मार्क्स, फेयर इनफ. बट आई थिंक हर किसी को लगता है ना मेरा ही आंसर अच्छा है. तो व्हाट आई सेड वाज आई थिंक मोर ब्यूरोक्रेटिक. ओके सर. राइट. चलो लेट्स कवर द कंटेंट्स नाउ. आई विल शेयर माय स्क्रीन. और कोई सवाल हो तो प्लीज मुझे बता देना जी, नहीं तो आई विल शेयर माय स्क्रीन. जस्ट अ सेकंड. So sedition laws are about the Gagging Act and the further. So this is the latest thing on it. First time since its inception in 1860s 70s the sedition law has been suspended. Sir, ये sedition law पहली बार जिंदगी में suspend हुआ है, and this follows this. Change is the only non-changing rule on this earth. हर कुछ चेंज होता है, इसीलिए ये भी चेंज हो गया है सिनेरियो. So with this we look at it. This is the news. We'll now want to know what is sedition. Technical definition sir, 124A IPC में दिया हुआ sedition. Whoever by words either spoken or written, जो नवजोत जी अभी डिफाइन कर रहे थे, और by signs or by visible representation or otherwise, क्या करता है जी? वर्ड से, स्पोकन या रिटन या साइन से क्या करता है आगे? brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite what? Disaffection towards the government, not government officials, government. अभी इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, लॉ की क्लास नहीं है ये, राइट? सो shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment to which may extend to 3 years. So 3-4 बातें जी. डिसअफेक्शन, हेट्रेड, एक्साइट कर रहा है बंदा अपने वर्ड से, साइन से, सिंबल से गवर्नमेंट के खिलाफ, उसे उम्र कैद या 3 साल की सजा दी जाएगी. पहली दिक्कत तो सेक्शन में ही है सर. एक तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोले तो एग्जीक्यूटिव है ना, तो बाकियों के खिलाफ, लेजिस्लेचर के खिलाफ कहाँ है? नहीं लिखा. जुडिशरी के खिलाफ कहाँ है? नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में. देन यू में आर्ग्यू कंटेम्प्ट में है, तो फिर कंटेम्प्ट में एग्जीक्यूटिव का भी कंटेम्प्ट बनाते हैं, ये क्यों सेडिशन बनाया? सो
फिफ्थ लॉ कमीशन ने ये बोला था कि ये वाली चीजें भी इंक्लूड करो, उसके लिए 124 बी डाल दो, बट वो इररिलेवेंट हो गया। 14th लॉ कमीशन ने बोला कि इन चीजों को डिफाइन करो, कंटेंट क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव बनाओ, और जो लेटेस्ट 2018 की लॉ कमीशन थी उनकी रिकमेंडेशंस और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प किया है उसको हम वे फॉरवर्ड मानेंगे। बट इतने सेक्शन तक तो हर कोई करता है सर, एक्सप्लेनेशंस भी पता होने चाहिए। 3 एक्सप्लेनेशंस हैं। पहली, डिसअफेक्शन को, डिसलॉयलिटी को भी, डिसअफेक्शन के अंदर डिसलॉयलिटी एंड फीलिंग ऑफ एनिमिटी को भी इंक्लूड करता है। देन फेयर कमेंट्स को एक डिफेंस बनाता है सर, ये बहुत काम आने वाला है। फेयर कमेंट इज अलाउड, जीएस के पेपर के लिए इतना ही काफी है, लॉ का ऑप्शनल होगा तो उसके बारे में भी बात करेंगे, बट फेयर कमेंट इज अ good defense against sedition, right? And you can criticize the government of the day, and also one thing to remember, it's government. So remember this, sir, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के खिलाफ आप बोलोगे तब सेडिशन माना जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सेडिशन नहीं होता। इज अ पर्सन, इफ यू रेफर टू हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर देन इट इज सेडिशन। इफ you refer to BJP and his policies as a politician, not as a prime minister, then it is not sedition, sir. So government and government functionaries are different. Please remember this. And fair comments are a defense. So अब law से छोड़ के simple words में आ जाते हैं। Simple words, what this means is anyone who attempts to create hatred, contempt or disaffection. So इसको याद ही कर लेना भाई, काम आएगा ऐसे HCD से, HDC से, जैसे भी याद होता है। हेट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन, ये लाइन लिखे आना, जीएस में काम आएगी। टुवर्ड्स द गवर्नमेंट कैन बी पनिश्ड अंडर द सेडिशन लॉ। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हिस्ट्री इसकी भी टाइमलाइन आ रही है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज अडॉप्टेड इन 1950 डिड नॉट रिकॉग्नाइज द सेडिशन लॉ एंड गेव राइट टू फ्री स्पीच कंप्लीट प्रोटेक्शन। इसकी कहानी अभी सुना रहा हूं। जब दिस इज द टाइमलाइन सर, 1890s में एक्चुअली किस रिवोल्ट के अगेंस्ट आया था सर, ये भी क्वेश्चन बनना चाहिए था। सॉरी, वहाबी रिवोल्ट के बंदों को कंट्रोल करने के लिए प्राइमरीली ये एम करा गया था। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जब लॉर्ड मैकॉले जी ने ओरिजिनल ड्राफ्ट बनाया था, ड्राफ्ट बनता है ना एक लॉ का, ड्राफ्ट लॉ, सो ड्राफ्ट लॉ में सेडिशन था, बट जब आईपीसी को ओरिजिनली अडॉप्ट करा गया, इनफोर्स लाया गया, तो ये सेडिशन लॉ नहीं था। फिर 1870 में दोबारा से अमेंडमेंट करके सेक्शन 124A, कैपिटल ए है सर, कैपिटल ए का मतलब ही अमेंडमेंट से डाला हुआ होता है। सो कैपिटल ए जब डाला गया 124A, तो ओरिजिनल में नहीं था, ऐड ऑन करा गया, जबकि ड्राफ्ट लॉ में मैकॉले साहब ने पहले डाला था। फिर अमेंडमेंट करी, इसके भी हेड कमिटी के मैकॉले साहब ही थे, लॉर्ड मैकॉले, बैरिंगटन मैकॉले। यूपीएससी इतना हो गया कि पहले नाम भी पूछ लेता है। सो लॉर्ड मैकॉले साहब ने इसको ऐड ऑन किया, right? So this is the timeline over here. Sedition was included as an offense in 1890. 1897 में सर बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स, बाल गंगाधर तिलक जी was famously tried for sedition. सबसे पहला केस सेडिशन का खैर जेसी बोस पे चला था, वो कन्विक्ट हुए थे। कन्विक्ट होने वाले पहले ये साहब थे। देन फादर ऑफ द नेशन साहब पे भी चला, महात्मा गांधी जी पे भी सेडिशन का ट्रायल चला था। ट्रायल चलना और कन्विक्ट होना दो अलग अलग बातें होती हैं, ध्यान रखना, राइट? And this man, Gangadhar Tilak ji, was famously convicted for, ध्यान रखना यूपीएससी इसमें गेम खेलता है, फर्स्ट ट्रायल हुआ था इन पे, कन्विक्शन हुआ था, इनका ध्यान रखना प्लीज। देन फर्दर जी 1962 केदारनाथ वाली चीजें आगे कर रहे हैं, इसको डिटेल में भी टाइमलाइन में डेट देख लो। ये सीजे रमना साहब ने, एनवी रमना साहब जो हमारे गए हैं अभी, इससे पहले से पिछले वाले 48, सो उन्होंने भी इस पे अपनी जजमेंट्स दिए, दैट विल बी डीलिंग विद। एंड एज वेल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है। देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को सुना है, और सेंटर ने जब एफिडेविट दे दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टे कर दिया। और विनोद दुआ वाला केस था जो भी अभी डिटेल हम देख रहे हैं उसकी। सो दिस इज गोइंग फ्रॉम, आई टेल यू वेरी वेरी ब्रीफली क्या हुआ है जी। सबसे पहले 1870 में आया, नंबर 1, देन इट वाज यूज्ड फॉर क्रिपलिंग द फ्रीडम मूवमेंट by the Britishers. Then in Indian Constitution जब आजादी मिली तो कोर्ट ने पहले इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, क्योंकि ये आर्टिकल 19 के खिलाफ था।
फिर सरकार ने इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट करी, आर्टिकल 19 में पब्लिक पीस या ट्रैंक्विलिटी वाले वर्ड्स डाले 19(2) में, जिसमें डिफेंसेस हैं। आई होप यू नो 19(1) और 19(2). 19(2) जो सारे डिफेंसेस हैं, द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो वाली चीज में वर्ड्स ऐड करे। एंड देन एक लैंडमार्क जजमेंट थी इसकी जी, केदारनाथ सिंह केस। इस केस में बोला गया कि हाँ ये वैलिड है। किस बेस पे बोला गया? दो बातें कंसिडर होती हैं। कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन है कि सर आर्टिकल 19 दैट मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। देन नेक्स्ट क्या चीज से बैलेंस कर रहा है? वर्सेस व्हाट? नेशनल इंटीग्रिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट एंड पीसफुल गवर्नेंस। So this versus this, freedom of speech versus national interest, individual interest, national interest, right? Then from this Kedarnath case, this was again in news because there was in this period 2016 to 19, there was a 160% increase in sedition cases. So now there are current rulings which we'll be dealing with and then forming an opinion and content and answer on this. So history sedition law की सर बेसिक हमने देख ली। कॉलोनियल ब्रिटिश रूलर्स लेके आए थे, इन्होंने बहुत बड़े बड़े हमारे गांधी साहब, नेहरू साहब, बाल गंगाधर तिलक जी, इनको बुक करा, इनके खिलाफ यूज करा। फिर हिस्टोरिक जजमेंट सर केदारनाथ केस की आई, जिन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल है जी, वैलिड है ये लॉ, एंड बट ऑल्सो अटेम्प्टेड टू रिस्ट्रिक्ट द स्कोप फॉर इट्स मिसयूज। इन्होंने क्या करा सर? इन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड नहीं, सिंपली बता रहा हूं, डिसअफेक्शन और हेट्रेड वाली जो बातें लिखी थी ना वहां पे, हमने HDC जो देखा था, हेट्रेड, डिसअफेक्शन या कंटेम्प्ट, इन्होंने बोला कि ये वर्ड्स अगर तो वायलेंस क्रिएट करते हैं, सिर्फ हेट्रेड नहीं, अगर वो वायलेंस क्रिएट करते हैं, वायलेंस या तो क्रिएट कर देते हैं या टेंड टू क्रिएट करते हैं, इन्होंने क्वालिफाई कर दिया HDC को, that only those things which either create violence or tend to create violence, only those would be booked under sedition, nothing else. So sedition का एक और higher level of justification चाहिए अब इस देश में, कि वो ऐसे words, sign, word, symbol होने चाहिए जो violence create करेंगे और या फिर tend to violence create करेंगे, और फिर क्या होगा जी? इस violence की वजह से public tranquility भंग हो जाएगी, पब्लिक पीस भंग हो जाएगा, तभी सडिशन माना जाएगा। सिर्फ ऐसे बैठे बैठे कुछ कहने से सडिशन नहीं हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द लैंडमार्क केस। द बिगेस्ट प्रिंसिपल इन दिस केस वाज दैट द वर्ड, साइंस और सिंबल शुड बी इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट और रैशनल मैन शुड बी एबल टू एक्चुअली क्रिएट अ वायलेंट प्रोटेस्ट और टेंड टू क्रिएट वायलेंस विच विल डिस्टर्ब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी सर, राइट? सो इसके बाद सर ये JNU वाला केस तो आपको पता ही है, फेमस, कि पोएट्री सेशन चल रहा था, वहां पे अफजल गुरु के सपोर्ट में बातें बोली गई, राइट? एंड इन स्टूडेंट्स पे भी सेडिशन का चार्ज लगाया गया। देन अभी रजत शर्मा जी का केस हुआ है सर, वेरी वेरी फेमस। रजत शर्मा एंड नेहा श्रीवास्तवा ने फारूक अब्दुल्ला पे केस कर दिया सर, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। फारूक अब्दुल्ला की कोई स्टेटमेंट ऐसी थी कि जम्मू कश्मीर में जो 370 को एब्रोगेट किया गया, हटाया गया, कहानी सुनो बड़ी अच्छी लगी मुझे तो। सो 370 आर्टिकल को हटाया गया, तो हम अब चाइना की सपोर्ट लेंगे। फारूक अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर स्टेट, अर्लियर अर्स्टवाइल स्टेट, तो उन्होंने कहा कि अब हम चाइना की सपोर्ट से ना अपने कश्मीर में 370 वापस लेके आएंगे। हम चाइना के पावर में रह के 370 में खुश हैं, चाहे हमें इंडिया से अलग क्यों ना होना पड़े, हम नहीं रहना चाहते इनके साथ। सो अब ये सेडिशन है या नहीं है, आप खुद से सोचो, फिर मैं आगे बताता हूं क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राइट? सो विद दिस कि चाइना की सपोर्ट लेंगे, हेल्प चाइना के लेंगे 370 वापस लाने के लिए, हम चाइना के साथ रह के खुश हैं। So, but the Supreme Court even in this was skeptical and said कि नहीं सर, this is not seditious to have different views from the government. और उसी पिटिशनर पे रजत शर्मा एंड नेहा श्रीवास्तवा पे 50,000 रुपया कॉस्ट लगा दी कि तुम फालतू में एलिगेशन लगाई जा रहे हो, उसकी कोई गलती नहीं है, उसका सिर्फ एक फेयर कमेंट या ओपिनियन है। उसने कभी भी ऐसा कहते हुए वायलेंस को इंसाइट
नहीं किया सर. So this is how cautious Supreme Court was, and it was always pushing the government to re-examine the sedition law, sir. कि बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि इसको री एग्जामिन करो. एंड पहला एफिडेविट जो आज से 2 साल पहले दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उन्होंने बोला था दैट सेडिशन लॉ हैज बीन हेल्ड वैलिड बाय दिस कोर्ट ओनली. आपने ही बोला है सर कि ये सेडिशन लॉ वैलिड है, और इसके लिए अब आप अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें. इसकी सारी पिटिशंस को, इनवैलिड मानने वाली पिटिशंस को आप फ्रिवलस डाल के मान के डिसमिस कर दो, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए जरूरी है. बट विद द पुश ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड विद दिस प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, since we are common servants, the government is progressive, obviously. So now the center itself gave an affidavit in the Supreme Court that we are ready and we also want to re-examine this law regarding sedition. Hence, this last about a month ago, Wednesday छोड़ देना इसमें से, the Supreme Court directed the center to not register any fresh FIR under sedition charges until the law is reviewed. So आज की डेट पे ये रूल क्या कह रहा है कि सर जो 124A है वो सस्पेंडेड इन एनिमेशन है या ऑपरेशन है. कोई भी FIR अगर इसके खिलाफ होएगी सेडिशन को यूज करते हुए, तो वो कोर्ट में जाते ही क्वैश हो जाएगी. कोई से भी लोएस्ट से लोएस्ट कोर्ट, फर्स्ट इंस्टेंस वाला कोर्ट, लोअर जुडिशरी, वही क्वैश कर देगी. ये अलाउड ही नहीं है जी. तो अब इसको I'm sorry, sir. I want to ask one. हाँ जी, One question. हाँ तो जी. थोड़ा सा टेक्निकल है. अगर SLP इसके अंदर कोई प्रेजेंट करेगी, फॉर एग्जांपल किसी स्टेट, महाराष्ट्र करेगी कि कोई एक स्टेटमेंट हुई है जिससे वायलेंस इंस्टिगेट हुआ है एंड वो SLP फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सो will the court uphold the suspension or will it simply say कि नहीं SLP आप तो पहले एडमिट ही नहीं ना होगी, बिकॉज द लॉ इज अंडर रिव्यू, इट इज सस्पेंडेड इन एनिमेशन और सस्पेंडेड इन ऑपरेशन. तो वो सेक्शन लिखा तो हुआ है बट इन फोर्स नहीं है. चाहे जौन सी मर्जी चीज फाइल कर लो, वो 136 वाली SLP बिल्कुल फाइल एडमिट ही नहीं होगी. ओके सर. राइट, यू कैन डील विद दिस. अगर कहीं वायलेंस हो रही है उसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से और आईपीसी के दूसरे सेक्शन से यूज करो. कौन मना कर रहा है? 120 यूज कर लो, 500 वाली लाइन यूज कर लो. पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाले ऑफेंसेस बहुत हैं, राइटिंग अ फ्रे, वो भी पनिशेबल है आईपीसी के अंडर. जरूरी है जेड़ा बेचारा हमने रोका है री एग्जामिनेशन के लिए, इसी के अंदर जाना है. So that's not required, right? So further ji, so what we'll do is from where we started, we have justified the whole chronology. अगर आपको कुछ नहीं भी याद है इसमें, तो आप इसमें छोटे छोटे 4 पॉइंट जरूर याद रखना. 1870 के आसपास आया, लॉर्ड मैकॉले साहब ने आईपीसी में ऐड करा 124A, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट एज अ रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव डन. दूसरा पॉइंट, केदारनाथ सिंह जजमेंट में वैलिड करा गया. आफ्टर व्हाट? आफ्टर द फर्स्ट अमेंडमेंट which amended article 19. Third, now there has been a review of this law by the center and suspended till there, and then the next slide would provide you way forward on the basis of recommendation of law commission. So this should reflect in your mental structure for prelims, in your answer sheet for mains, in your reply for interview. ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए. ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर, मतलब ब्रॉड थीम्स बना के एक एक टॉपिक को तैयार किया जाता है. वो जमाना चला गया कि मैं याद कर लूंगा केदारनाथ सिंह 10 बार बोल के. जब 11वीं बार पेपर में आएगा भूल जाओगे केदारनाथ सिंह था कि बल्लभ सिंह था. They'll give you confusing options, right? So अब वे फॉरवर्ड के लिए सर, way forward should be very 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 bureaucratic, and way forward is not conclusion इसके बाद आएगा सर. So while there may be enthusiastic people about the possible abolition of sedition in the country, there is a possibility of reforming the provisions of IPC as is been proposed by majority of private member bills. बहुत सारे आए थे. Even the law commission in its consultation paper 2018 का है सर ये, consider sedition essential to national integrity. National integrity versus freedom of speech का ही मुद्दा है, but
एबोलिशन या रिपील बिल्कुल भी उसका आइडिया नहीं है, राइट। सो क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं सर? अगर वे फॉरवर्ड पूछ ही रहा है क्वेश्चन तो ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे कि जो लॉ कमीशन ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं। सो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन हो गया सर। एडिंग एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडिंग दैट acts expressing disapprobation of the measures of the government or administrative action of the government would not amount to action. So फेयर कमेंट वाले डिफेंस को एक्सप्लिसिटली बोलो, जो सबको पता चल जाए कि अगर हम सरकार की मूव के खिलाफ कुछ करते हैं, कुछ बात करते हैं, कमेंट करते हैं, फेयर कमेंट करते हैं, वायलेंस नहीं इंसाइट करते, तो वो नहीं माना जाएगा सेडिशन। देन एडिंग अ क्लैरिफिकेशन टू द एक्सप्लेनेशन that sedition would apply only if it directly results in incitement of violence. केदारनाथ के प्रिंसिपल्स को जजमेंट से हटा करके, जजमेंट से निकाल करके सीधा सीधा एक्ट में लिख दो, as clearly as that, right? Adding a clarification regarding the scope of disaffection. This means कि definitional clarity भी चाहिए, vague wording को हटाना है कि क्या है disaffection. What do you mean by disaffection? कि मुझे मोदी जैकेट नहीं पसंद है, disaffection है. This is not disaffection, but इधर तो नहीं है defined. So we can have an objective criteria, right? And legitimate protest को भी define कर देना चाहिए जितना possible हो. Then further जी, procedural safeguards. This is very 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 necessary. सर harassment होती कैसे है कि पुलिस वाला आप पे पॉलिटिकल प्रेशर में आके 124A का केस दायर कर देता है और आपको उठा के ले जाता है ना? तो आप फिर जब कोर्ट में जाते हो, कोर्ट यूजुअली डिसमिस ही कर देता है कि कोई नहीं, ये सेडिशन है नहीं। विनोद दुआ का केस ले लो, वो दीक्षा का केस ले लो जो टूल किट वाला चला था, सब में डिसमिस हो गए। इवन फारूक अब्दुल्ला वाला इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो भी डिसमिस कर दिया। बट आम आदमी की तरह सोचो ना साहब, आपने कुछ कमेंट लिखा फेसबुक पे, आपको घर से उठा के ले गए, क्या होगा फिर? जब जाओगे घर पे पुलिस वाले आएंगे, माँ बाप मारेंगे, गुस्सा होंगे, एंड आपकी हेरासमेंट और डिफेमेशन तो होगी। एंड देन चाहे केस डिसमिस भी हो गए, बदनाम तो आप हो गए ना। सो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स आर वेरी 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 नेसेसरी। सो कमिंग टू कंक्लूजन्स, सर यूपीएससी में आपको एक मौका मिलता है, बहुत लंबा पेपर होता है, एक कंक्लूजन लिख दो, बट स्टेट सर्विसेज में कंक्लूजन्स भी लिख सकते हो आप। वील डिस्कस इट इन आंसर राइटिंग क्लास। So conclusions में sir, it may be argued that despite having clear guidance in Kedarnath, this is very very necessary. This is happening for 66A of Cyber Act as well. वो भी रिपील हो चुका है। आज तक देश के पुलिस थानों में सर 66A IT एक्ट पे कार्रवाइयां चलाई जा रही हैं। सो वही बात यहाँ पे हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि 124A के जितने प्रिंसिपल्स थे केदारनाथ में, वो होने के बावजूद भी लोअर लेवल पे, पुलिस वाले लेवल पे अब्यूज किया जा रहा है 124A पे। इन द रियल वर्ल्ड वो केदारनाथ के प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकली ट्रांसलेट ही नहीं हुए। सो दैट इज व्हाट वी वांट नाउ, राइट? देन फर्दर टू काउंटर दीज इट इज एसेंशियल टू रेज अवेयरनेस अबाउट इट। तो हमने पहले वे फॉरवर्ड में बोला था कि एक्ट में लिख दो, राइट? पुलिस को, लोअर जुडिशरी को, सबको अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अब नहीं हो सकता ये। देन फर्दर जी लास्ट में थोड़ा सा प्रेस तो करना है, सरकारी नौकरी करनी है हमने। So modifying the law on sedition can positively impact the future of dissent and free speech in the country. The changes in law will have a major standing on whether a citizen would feel safe in raising opinions contrary to the government. Then further the last thing, the changes introduced must protect the citizens from freedom of speech and the right to dissent. Bureaucracy देखो सर, while keeping national security interest in mind. छोटी सी कंक्लूजन की किताब बना लो, डायरी बना लो, उसमें इस बारी क्वेश्चन आना ही आना चाहिए सेडिशन पे, बिकॉज बहुत न्यूज में है। तो उसकी कंक्लूजन ये रही, बहुत काम आती हैं ऐसी वाली चीजें। सो चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड, दिस इज अ कंक्लूजन फॉर सेडिशन। इन योर डायरी ऑफ कंक्लूजन्स मार्क दिस एज कंक्लूजन नंबर 1। बाकी अगर कोर्स हमारे पास कर रहे हो या ज्वाइन कर रहे हो, जैसा भी है, तो ये लिस्ट आपको मेंस वाली आंसर राइटिंग वाली में मिल ही जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन सर, अभी तो बहुत आसान लगेगा। विच अमंग द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू लॉ ऑन सेडिशन? ये कहां से मैं लेके आया हूं सर? यूपीएससी के क्वेश्चन से। एचसीएस ने भी ऐसा सही क्वेश्चन पूछा था। दैट विच ऑफ द क्वेश्चन था वहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस और अरेंज इन क्रोनोलॉजी द केसेस रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर। आप साफ साफ देख सकते हैं पॉलिटी में केसेस आ रहे हैं। प्रीलिम्स में भी आया था ये वाला सवाल,
मेंस में आया था एनवायरमेंट रिलेटेड PILs के केस लॉज बताओ। सो केस लॉज पे सवाल आ रहा है, उसी की नेचर का सवाल उठा के सेडिशन से भी आ सकता है। दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, राइट, कि इनमें से कौन सा केस रिलेटेड है, केशवानंद भारती, इंदिरा गांधी, केदारनाथ, AK गोपालन। So now we have covered the content, so I'll not ask you guys, this is the answer. Obviously Kedarnath Singh is related with sedition law, it is the landmark case. So GS में भी अब जरूरी हो गए सर केस, ये मत सोचना कि ये क्या कर रहे हो, पेपर उठा के देखो, किसी की बात पे ना जाओ, हरी पीली किताब पे ना जाओ, राइट। सो मेंस क्वेश्चन क्या हो सकता है सर सेडिशन पे, इसका आंसर आप लोग लिखेंगे आफ्टर द क्लास बाय टुमारो और डे आफ्टर। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनका मैं इवेल्युएट करके दूंगा ही दूंगा, right? Though sedition law is a colonial relic and given its chilling effect on freedom of speech, the law must be repealed. Discuss. So address this question, address the directive and the keywords. Let's write an answer in about 200 to 250 words. अभी टाइम लिमिट मत सोचना, आंसर लिखना अच्छे से, उसकी बात करेंगे आंसर राइटिंग क्लास में। So this was today we tried to deal with a scenario where we are giving you an example कि आगे करंट अफेयर्स कोर्स में क्या होने वाला है एंड हम लोग क्या सोचने वाले हैं इसके बारे में एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू कवर दिस वे। आज एक ही टॉपिक था बट एक क्लास जब भी सैटरडेज को होएगी तो जितने भी रेलेवेंट चीजें होंगी उन्हें इस डेप्थ में कवर किया जाएगा, इस पैटर्न में कवर किया जाएगा एंड एवरी टाइम we'll try to have a question related to that topic, right? So this is the idea and the sources would be away from the normal sources, right? So I'll be coming back to you guys now. जो भी कोई सवाल हो तो प्लीज मुझे बताना।